Good evening, dear students. I am Mahendra Singh Chauhan. Welcomes to all of you on our online platform of Sri Karni Academy and EduTech. In yesterday or last class, we discussed about the cell cycle and cell division, and we discussed all things about the interface, how the DNA replicates, in which phase of the interface or in which phase of the cell cycle DNA replicates, what are the role of gap phases, what is the denotation of G1. G1 stands for gap 1 and G2 stands for the gap 2. All things we discussed in our last videos and last session. If you missed that classes, you can go through our videos and watch this. Now today we are discussing about the mitosis. What is mitosis and what is, in next session we will discuss about the meiosis. Means in upcoming 2-3 videos we will complete our this chapter cell cycle and cell division, because we already completed about the interface and all things related with the interface and how many checkpoints are there, what are the role of checkpoints, what is G node phase and what is the role of G node phase, why the cell enter into this phase, all things. Now today we initiate our topic. Yesterday in yesterday's class or in last class I asked few questions to you peoples, but I thought you were going through that questions and I got lots of answers, but few of them are correct. So I appreciate your knowledge and your answer. Now today's question is what? What is mitosis? Here what you see, just first I want to read out the definition. Mitosis is a process where a single cell divides into two identical daughter cells. This is known as cell division. Okay, one cell gave rise to two identical daughter cell. One is here and another is here. What you see here? The chromosome number, one dark blue and one sky blue here, one dark blue and one sky blue here, one dark blue and one sky blue here. Means the genetic composition is also equal in both the cells, in both the daughter cells, equal to their parents. Okay, that's what I am saying. Mitosis is a process where a single cell divides. Here the single cell, it takes division phases, it going to divide and form two daughter cells, one here and one here. So overall this was diploid cell and these two daughter cells are also diploids, two identical diploid cells, and from here to here there are lots of events occur between these phases. You can see here what will happen, X-like structure, and how the chromosome chromatid separates, and now finally the cells nucleus form in both the sides, and finally the detachments occurs and both the cells separates from each other. So what are the names of these phases? Interphase already we discussed, G1S and G2, DNA replication takes place. I also asked one question related to the same. In the gap 1 the number of chromosomes are 16, and how many chromosomes will be in the S phase and how many chromosomes will be on G2 phase and all these proceeding phases. And also asked for regarding the chromatids in the last class. So I will wait for your answers. I hope most of the people will answer correctly after attending my class. Now what will happen in the prophase, what will happen in the metaphase, anaphase, and finally telophase and cytokinesis. Here in just in a single line or in a single word, what I am saying, prophase chromosome pairing, and metaphase chromosome line up at equator, chromosome arranged at the center plate, imaginary planes, and here you can see thread-like structure which is are the mitotic spindles. Now what will happen in the anaphase? Sister chromatids pulled apart, both the sister chromatids move towards the opposite poles, and finally in the telophase and cytokinesis, nucleus reappeared, nuclear membrane reappeared, nucleolus reappeared, and finally cytokinesis means here detachments occurs and these cells here and this cell here. Finally we can say the two cells form from the single one. Now we are taking now
Just an overview of the mitosis. During mitosis, one cell divides once, एक सेल एक बार डिवाइड करेगा एंड दो सेल बनाएगा. वन सेल डिवाइड्स वन एंड फॉर्म टू आइडेंटिकल सेल्स. ओके, एक सेल से दो सेल बन रहे थे, हमने दिखाया प्रीवियस स्लाइड्स में. अब माइटोसिस की रिक्वायरमेंट कहाँ है, कहाँ जरूरत पड़ी, माइटोसिस क्यों कराए, तो उसकी पर्पस की बात करें. मेजर पर्पस जो माइटोसिस का होता है वो होता है ग्रोथ एंड टू रिप्लेस वॉर्म आउट सेल्स. ठीक है, जो ग्रोथ होती है सेल की, मैंने जैसे यस्टरडे की क्लास में बताया था, माइटोसिस जो होता है, हम छोटे से बड़े हुए, अगर माइटोसिस नहीं होता तो ग्रोथ नहीं होता सेल का, तो हमारा भी ग्रोथ नहीं होता. सेकंड थिंग इज दैट जो चोट लगती है, घाव होता है, उस जो हीलिंग हो रही है वहां पे वापस उसको रिफिलिंग भी करना है. जो घाव हुए, वाउंड्स हुए, वहां की हीलिंग करना है. वो हीलिंग कौन किसके थ्रू होती है, माइटोसिस के द्वारा. अगर माइटोसिस नहीं होगा, एक सेल से दो सेल नहीं बनेंगे, तो वहां की जो चोट लगी है उस इंजरी पार्ट का रिकवरी कैसे होगी. ओके, वहां पे भी माइटोसिस की जरूरत है. नेक्स्ट, इफ not corrected in time, mistakes made during the mitosis can result in change in the DNA that potentially lead to genetic disorder. अगर यहाँ पे बात करें कि अगर टाइम के साथ इसमें डिवीजन नहीं हुआ तो क्या होगा, डीएनए में रिप्लिकेशन होता जाएगा और डीएनए में हो सकता है कोई चेंजेस आ जाए. और डीएनए में ज़्यादा चेंजेस आ गया तो क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, बहुत सारी जेनेटिक डिजीज हो जाएगी. जो मैंने आपको कल भी बताया था, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है वो अपन डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में क्लास 12th में. और फिर भी आपको कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि नहीं सर हमें तो अभी जानना है, तो मैं जब 12th वालों का जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा ऑनलाइन, आप हमारे वो वीडियो देख सकते हैं. या अपना नाम बता दीजिएगा, आपको इंटीमेशन अलग से रिमाइंडर सेंड कर दिया जाएगा जो उस क्लास का. माइटोसिस इज डिवाइड टू 5 फेजेस. माइटोसिस जो है 5 फेज में डिवाइड है, जो जस्ट एन ओवरव्यू मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखा चुका हूँ. कौन सी, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. दिस इज इंटरफेज, ऑलरेडी वी डिस्कस. बस जस्ट मैं आपको रीड आउट करूंगा क्योंकि हमने पूरा डिटेल में इंटरफेस को डिस्कस कर चुके हैं. द डीएनए ऑफ द सेल इज कॉपीड इन प्रिपरेशन ऑफ द सेल डिवीजन. दिस रिजल्ट इन टू आइडेंटिकल फुल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. एक क्रोमोसोम से एक ही क्रोमोसोम रहेगा लेकिन उसकी क्रोमेटिड्स बन जाएगी. ये एक क्रोमोसोम है तो एस फेज में जाने के बाद क्या होगा, क्रोमोसोम तो अभी भी एक ही है लेकिन क्या बन गई इसकी क्रोमेटिड. जैसे यहाँ एक क्रोमेटिड, दूसरी क्रोमेटिड, तो इसको कहेंगे 2C, तो इसको क्या कहेंगे 4C. 1 2 3 4, 4 क्रोमेटिड्स. ओके, दिस आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स. आपस में एक दूसरे की क्या है, ये सिस्टर है तो सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती है. ड्यूरिंग मेटाफेज, सॉरी दिस पॉइंट, आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस देयर आर 2 सेंट्रोसोम्स. न्यूक्लियस के बाद 2 सेंट्रोसोम होते हैं, जो आपको बता ही चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं जब हमने सेल ऑर्गेनिज्म बात की थी. ईच कंटेनिंग अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स. ठीक है, और हर एक में क्या होता है, एक सेंट्रियोल का पेयर होता है जो 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से सिचुएटेड होते हैं और उनके अंदर का फ्लूइड जो होता है सेंट्रोसोम कहलाता है. दिस स्ट्रक्चर आर क्रिटिकल फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. ये क्या स्ट्रक्चर क्रिटिकल है सेल डिवीजन के प्रोसेस के लिए और यही हेल्प करेगा जब क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होगा, क्रोमेटिड्स का सेग्रीगेशन होगा. ड्यूरिंग इंटरफेज माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंड फ्रॉम दिस सेंट्रोसोम. क्लियर, यहां पे इंटरफेस में माइक्रोट्यूब्यूल एक्सटेंड हो जाएंगे. माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंड कैसे, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सेंट्रोयोल है, ये देखो यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हो गए, ये माइटोटिक स्पिंडल वो क्या होगा, एक्सटेंड हो रहा है. वैसे मैं डिटेल में आगे बताऊंगा. क्लियर, ये तीनों पॉइंट क्लियर. न्यूक्लियस के बाद 2 सेंट्रोसोम होता है, 2 सेंट्रोसोम होता है और एक हर एक में एक सेंट्रोसोम में बात करें तो एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होता है
और क्रिटिकल प्रोसेस में सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक्सटेंड करके क्रोमोसोम्स के सेग्रीगेशन में हेल्प करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट फेज ऑफ द माइटोसिस, प्रोफेज फेज। व्हाट विल हैपन इन द प्रोफेज? दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द एम फेज। क्लियर? कल हमने G1 बात की थी, G1 है G2 इन सेल साइकिल में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पड़ा था। G1 S G2 एंड M। तो ये तो सारा इंटरफेज है G1 से लेके G2 तक। और ये जो बचा है एम फेज, एम फेज में आता प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड फाइनली टेलोफेज। तो ये सारी फेजेज जो बात करेंगे ये एम फेज के अंतर्गत आती है। दे आर ऑल द पार्ट्स ऑफ एम फेज। और प्रोफेज इज द इनिशियल फेज, फर्स्ट फेज ऑफ द माइटोसिस फॉलोज द। उसके बाद बात करेंगे जस्ट किसके बाद आती है? G2 फेज के बाद में आती है। ठीक है, किससे पहले आती है? G1 फेज के पहले आती है। एम फेज की बात कर रहे हैं हम सब। ठीक है, तो जस्ट किसके बाद है? फॉलोज द S एंड G2 phase of the interphase. In the S phase and G2 phases, the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined. Prophase is marked by the initiation of the condensation of chromosomal material. तो क्या है प्रोफेज में? मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि क्रोमोसोमल मटेरियल जो है उसका क्या होता है? कंडेंसेशन। The chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation. The centriole, which had undergone duplication during S phase of interphase, now begins to move towards opposite poles of the cell. जो सेंट्रियोल से हमने बात की, 1 से 2 पेयर सेंट्रियोल के बन रहे हैं एस फेज में। जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, जब एक डीएनए से 2 डीएनए बन रहा है, उसी दौरान सेंट्रियोल का भी रेप्लिकेशन हो रहा है। तो सेंट्रियल क्या होंगे? वो अब अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे। अपोजिट पोल मतलब कि अगर हम इसको नॉर्थ कहें तो एक हो गया, एक साउथ। तो सेंट्रियोल जो है वो एक इधर आ जाएगा, एक इधर चला जाएगा, पूरा पेयर ना। ठीक है, एक सेंट्रोसोम यहाँ, दूसरा सेंट्रोसोम यहाँ, मतलब 2 सेंट्रियोल यहाँ, 2 सेंट्रियोल यहाँ। अब नेक्स्ट बात करें अपोजिट पोल्स। द कंप्लीशन ऑफ द प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इवेंट्स। अब उसमें क्या क्या प्रोफेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं उनकी बात करें। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म द कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। तो कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। ठीक है, 2 क्रोमेटिड्स का कंपोजिशन होता है जो मैं आपको बता चुका हूं। ये क्या है? ये एक पूरा क्रोमोसोम है। ठीक है, अब क्रोमोसोम में कितने हैं? 2 क्रोमेटिड है। अभी बताया था मैंने, एक ये क्रोमेटिड, दूसरा ये क्रोमेटिड, दोनों मिला के 2C अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। दोनों का अटैचमेंट क्या? एक सेंटर पॉइंट पे होता है और इसी को क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर। Initiation of the assembly of mitotic spindle, the microtubules, the proteinaceous component of the cell cytoplasm helps in the process. अब यहाँ पे जो माइटोटिक स्पिंडल्स है असेंबली हो रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो प्रोटीनेशियस कंपार्टमेंट है साइटोप्लाज्म में, वो सारे इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। पूरे सेल डिवीजन में सब पार्टिसिपेट करेंगे। इसके कंडेंसेशन में क्या, सेंट्रल के मूवमेंट में क्या। क्लियर? क्योंकि माइटोटिक स्पिंडल बनेंगे इस तरह से, दोनों के बीच में कनेक्शन बनेंगे, उनको कहा जाता है माइटोटिक स्पिंडल्स या स्पिंडल फाइबर। Cells at the end of prophase, when viewed under the microscope, do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and the nuclear envelope. जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे ये सारे ऑर्गेनेल्स नहीं दिखते हैं प्रोफेज में। तो प्रोफेज में क्या हो रहा है? ये ऑर्गेनेल्स क्या होता है? धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है, धीरे धीरे गायब होने लगता है। कौन कौन से?
गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, ये गायब हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं। नेक्स्ट प्रोफेज की बात कर रहे हैं। द क्रोमोसोम्स कंडेंस इनटू एक्स फेज शेप्ड। क्रोमोसोम कंडेंस होगा, कैसा शेप बना रहे देखो यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया था इस तरह से ये एक क्रोमोसोम। अब ये एस फेज के बाद बात करें इसका डुप्लीकेशन हो जाएगा। हम बात करें सीधा प्रोफेज में, तो ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, ये तीसरा क्रोमेटिड और ये चौथा क्रोमेटिड। बीच में क्या है? सेंट्रोमियर। तो क्या बन गया? एक्स बन गया। तो एक्स शेप में आ जाते हैं। दैट कैन बी इजीली सीन अंडर माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप में इस स्ट्रक्चर को इजीली दिखा जाता है। ठीक है, इसको बात करें तो प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। Each chromosome is composed of 2 sister chromatids. तो हर एक क्रोमोसोम में बात करें तो क्या होगी? 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। एक ही सिस्टर, सॉरी, एक ही क्रोमेटिड्स और ये आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो उसके अलावा कंटेनिंग आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में कुछ भी चेंज नहीं होगा, पूरा पूरा जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है अगर यहाँ कैपिटल ए का जीन है तो हो सकता है यहाँ पे स्मॉल ए आ जाए, लेकिन आएगा ए ही, बी नहीं आएगा। तो बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, स्लाइटली चेंज हो सकता है। एट द एंड ऑफ प्रोफेज, लेकिन माइटोसिस की बात है, माइटोसिस में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। ठीक है, हम मियोसिस में बात करेंगे तो मियोसिस में थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? मियोसिस की जो प्रोफेज पढ़ेंगे, मियोसिस में प्रोफेज होगा, सेम चीज होगी, लेकिन वहां पे थोड़ा सा चेंज हो सकता है, इसी वजह वहां वेरिएशन आता है। Both copies of the chromosome 2 are together and so on. At the end of the prophase, the membrane around the nucleus in the cell dissolves away, releasing the chromosomes. ठीक है, और प्रोफेज के हम बात करेंगे एंड में, जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के अराउंड में, वो हो गई, डिजॉल्व हो गई है, और क्या करती है? क्रोमोसोम्स को रिलीज कर देती है। चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है, ये देखो, ये न्यूक्लियोलस पहले डिसअपियर हो गए, क्रोमेटिन कंडेंस हो गए क्रोमोसोम्स में। ये जो पहले थे क्रोमेटिन ऐसे थ्रेड लाइन, वो मतलब क्रोमोसोम में कंडेंस हो गए, और सेपरेशन ऑफ सेंट्रोसोम है उसका सेंट्रियोल्स, और फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन, मतलब जो सेंट्रोसोम थे अपोजिट पोल की तरफ चले जा रहे हैं। ये देखो, एक ही सेंट्रोसोम, दूसरा ये सेंट्रोसोम, ये स्पेलिंग एरर है। ठीक है, और लास्ट में यहां से निकल रहा है ये ब्लू वाले थोड़े से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको कहा जाता है माइटोटिक स्पिंडल। तो माइटोटिक स्पिंडल का भी फॉर्मेशन इनिशिएशन हो जाता है। तो मेन चीज हमें क्या ध्यान रखनी है यहाँ पे, लास्ट पॉइंट पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं वापस से थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। द माइटोटिक स्पिंडल कंसिस्टिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द अदर प्रोटीन्स एक्सटेंड अक्रॉस द सेल्स बिटवीन द सेंट्रियोल्स एज द मूव टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। माइटोटिक स्पिंडल जो है उसमें क्या है? उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स है और प्रोटीन्स है, और क्या हो सकता है वहां पे जो सेंट्रियोल्स के बीच में वहां पे उस गैप को फिल करने का काम करेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे मेटाफेज, मेटाफेज में आपको ये चीज पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि दोनों के बीच दोनों सेंट्रियोल जो होंगे आपस में बिल्कुल जुड़े हुए होंगे, और उनको जोड़ने का जो मीडियम है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल से क्या होता है? क्रोमोसोम्स को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है, उसको स्ट्रेच करता है अपोजिट पोल की तरफ। तो हम मेनली चीज हमें प्रोफेज में क्या ध्यान रखनी है, जो एक तो क्रोमोसोम जो होता है एक्स शेप में दिखाई देते हैं, न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस जो होता है डिसअपियर हो जाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर होने लग जाती है एट द एंड ऑफ प्रोफेज। फिर बात करें तो जो सेंट्रोसोम जो एस फेज में बने थे उनका सेपरेशन भी होने लग जाता है, और माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होने लग जाता है। उसके अलावा बात करेंगे जो सिस्टर क्रोमेटिड होगी उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? एग्जैक्ट होगा किसके? पेरेंट के, नथिंग टू बी चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और
बात करें एट द एंड ऑफ प्रोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये वाली जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, इसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखो धीरे धीरे डिसॉल्व होती है और ये क्रोमोसोम जो होता है ये रिलीज होकर के बाहर की तरफ दिखता है आपको ऐसे कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट फेज है जो मेटाफेज। अब ये देखो, ये सेंट्रोसोम थे, अपोजिट पोल्स आ गए, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल दिख रहे हैं अब आपको, और इसका भी एक सेंट्रियोल्स के एक पेयर है दिख रहे हैं, और एक दूसरे के साथ एंगल कैसा है 90 डिग्री का। क्लियर? तो क्या होता है मेटाफेज, क्रोमोसोम लाइन अप अलोंग द मेटाफेज प्लेट। और मेटाफेज प्लेट क्या है, एक हमने माना कि यहाँ कोई एक प्लेट रखी है, ये जो प्लेट है ये प्लेट है, और यहाँ पे क्रोमोसोम आकर सब बैठ गए। ठीक है, तो इसको एक सिर्फ इमेजिनरी प्लेट है कि काल्पनिक प्लेट है, ऐसा कोई प्लेट नहीं होती, सिर्फ इमेजिनरी है। और उस प्लेट को नाम दे दिया क्या, मेटाफेज प्लेट। क्यों नाम दिया? क्योंकि फेज ही कौन सी है, मेटाफेज की है, और इमेजिनरी प्लेट है, तो ये इमेजिनरी प्लेन है, मेटाफेज में दिखा, इसमें मेटाफेज है प्लेट। तो सबसे उसमें होता क्या है, यहाँ माइटोटिक स्पिंडल पूरे यहाँ सेल में फैल गए। ठीक है, सेंट्रियोल जो है बिल्कुल अपोजिट पोल्स की तरफ है, सेपरेशन तो प्रोफेज में हो गया था। अब उसके अलावा देखो, अब क्रोमोसोम एकदम सेंटर में अलाइन हो गए। यहाँ क्रोमोसोम के नंबर काउंट किए जा सकते हैं। बात करते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कल ओनियन में बात की थी हमने कि ओनियन में रोटी में बात करें तो 16 क्रोमोसोम होता है। तो 16 क्रोमोसोम पता कैसे पड़ा 16 है, तो यहाँ मेटाफेज वाली स्टेज पे ही क्रोमोसोम जो अरेंज होते हैं उनको काउंट किया जा सकता है कि कितने क्रोमोसोम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ क्रोमोसोम को काउंट किया जा सकता है। क्लियर? द क्रोमोसोम लाइन अप एट द नीटली एंड टू एंड अलोंग द सेंटर इक्वेटर। और देखो एकदम सेंटर में है सेल के, एकदम सेंटर में है सेल के, ये सेंटर पॉइंट। और द सेंट्रियोल आर नाउ एट द अपोजिट पोल्स। बस बताया मैंने आपको, सेंट्रियोल कहाँ है, ये सेंट्रियोल से हमारा, और कहाँ है, एक तो नॉर्थ में दूसरा साउथ में है, दो पोल्स में चले गए। ऑफ द सेल विद द माइटोटिक स्पिंडल फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम देम। किसके थ्रू? स्पिंडल फाइबर के थ्रू। और स्पिंडल फाइबर का है पूरे सेल में एक्सटेंड हो रखे हैं, ये देखो एक तो है माइटोटिक स्पिंडल फाइबर। अब द माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू ईच ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड। वो हर एक सिस्टर क्रोमेटिड के साथ अटैच्ड है। ये जो स्पिंडल फाइबर आया, जितने क्रोमोसोम होंगे उन सारी सिस्टर क्रोमेटिड के साथ या माइटोटिक स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, आपको इंटरेस्टिंग एक चीज और बता देता हूं, ये चीज क्या कहलाती है, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के आसपास यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इन प्रोटीन को कहा जाता है काइनेटोकोर प्रोटीन। अब इस जो ये माइटोटिक स्पिंडल फाइबर है वो इस पूरे का ना सेंट्रोमियर को जानते हैं ना इस क्रोमोसोम को, वो इस प्रोटीन को पहचानते हैं और आके कहाँ अटैच होते हैं, सिर्फ इस प्रोटीन के साथ। और इस प्रोटीन के थ्रू ही बाद में वो क्रोमोसोम्स को या सिस्टर क्रोमेटिड को अपने पास खींचते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है मेन, द माइटोटिक स्पिंडल फाइबर अटैच टू द ईच ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स। नेक्स्ट बात करें, ये पूरा मेटाफेज का, ये देखो आप, एक नॉर्थ पोल में एक साउथ पोल में एक क्रोमोसोम्स का पेयर है, सिस्टर क्रोमेटिड दिख रही है आपको। अब ये देखो दो ब्लू वाले हैं, दिख रहे हैं एक जैसे, क्या मतलब इसका कि अगर ह्यूमन बीइंग में बात करें तो क्रोमोसोम कितने हैं 46, और मैं आपको पेयर की बात करूं तो कितने पेयर हैं 23 पेयर्स। तो क्या होता है एस फेज में जो क्रोमोसोम 1 है, जैसे सपोज ये क्रोमोसोम 1, इसका एक पेयर, तो एस फेज में क्या हुआ, इसका एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसका भी एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो ये बन गया क्रोमोसोम 1 का पेयर। तो ये सीधे सीधे सेपरेट हो जाते हैं सेल्स में। ठीक है, यहाँ पे ये इससे अटैच डिटैच हो जाएगा, ये इससे डिटैच हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो
तो ये क्रोमोसोम 1 है और ये भी 1 का पेयर था इसके साथ वाला। क्लियर? क्योंकि डुप्लीकेशन होता है एस फेज में और हमारे पास 23 पेयर में क्रोमोसोम होते हैं। चाहे आप इसको 1 2 दे करके 46 करो, चाहे इसके 1 1 के पेयर बना दो कि 1 का पेयर फिर 2 का पेयर, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? तो ऐसे पेयर बनेंगे हमारे पास 23। तो खैर यहाँ पे हम बात करें तो ये क्रोमोसोम सपोज ये 1 है, तो ये क्या हो गया आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर जाएगी, एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर जाएगी, इसकी एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, इसकी एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। क्लियर? तो ये वाला इधर, ये वाला इधर। चीज़ समझ में आई होगी आपको कुल मिला करके। तो यहाँ पे किसका हो रहा है? यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड आपस में सेपरेट हो रही है। कब होगी? एनाफेज में। अब जैसे मेटाफेज की बात करें कि यहाँ पे ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज, मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम देखे जाते हैं स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे जो पता पड़ गया भाई यहाँ क्रोमोसोम है, सीधा बीच में अरेंज कर दो लाइनअप इक्वेटर पे, कौन सी? इमेजिनरी प्लेन पे, और जिसको कहा जाता है मेटाफेज प्लेट। चलो इसको भी रीड आउट कर लेते हैं। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स the start of the second phase of the mitosis. Hence the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. By this stage condensation of the chromosome is completed and they can be observed clearly under the microscope. तो कंडेंसेशन हमने देख लिया, क्रोमोसोम अरेंज हो गए सेंटर पे। अब उसको क्रोमोसोम का आसानी से काउंट कर सकते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दिस इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम इज इजीली स्टडीड। क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी होती है, क्रोमोसोम के डिफरेंट शेप्स होते हैं। कैसे होते हैं? एक होते हैं आई शेप, एक होते हैं जे शेप, वी शेप, एल शेप। ठीक है, तो हम बात करेंगे वी शेप में। तो क्या होता है? क्रोमोसोम की दोनों आर्म जो होती है, पी इसको कहते हैं पी आर्म, इसको कहते हैं क्यू आर्म, दोनों की दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसको तो कहते हैं वी शेप। अगर इसकी बात करें तो एक आर्म छोटी होती है ऊपर वाली, थोड़ी नीचे वाली आर्म जो है वो बड़ी है कंपेरेटिवली, तो ये बन जाएगा एल शेप। तो इसको कहेंगे एल शेप क्रोमोसोम। जेब में बात करेंगे, जेब में थोड़ी और छोटी हो जाएगी और नीचे वाली ज़्यादा बड़ी रहेगी। और आई में तो कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ ऊपर वाली आर्म होती नहीं है, नीचे वाली आर्म ही होती है। तो ये चारों शेप्स आपको देखने को मिलेंगे, आई जे वी एल शेप्स। तो ये सेल की कौन सी फेज में इसको दिखता है? हालांकि ये एना फेज में दिखते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारे शेप्स कौन सी फेज में दिखेंगे? एना फेज में दिखेंगे। अब एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ये वाली, एक ये वाली, पता है हमें, मैंने आपको बता चुका हूँ। which are held together by the centromere. Small disc shaped structure at the surface of the centromere are called काइनेटोकोर। मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसको क्या कहा जाता है? काइनेटोकोर। एक्चुअल में काइनेटोकोर तो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो मेनली स्पिंडल फाइबर को अटैच होने में हेल्प करते हैं। क्लियर? ये हुई सारी मेटाफेज की बात। और भी बात करते हैं मेटाफेज के बारे में। दिस स्ट्रक्चर सर्व एज अ साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। कौन सी साइट? काइनेटोकोर प्रोटीन वाली जो भी बताई, फॉर्म बाय द स्पिंडल फाइबर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर आके जुड़ते कहाँ है? काइनेटोकोर प्रोटीन वाली साइट पे, टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू द अपोजिट एट द सेंटर ऑफ द सेल्स। ठीक है, हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। सारे क्रोमोसोम कहाँ आ गए? सेंटर पे आ गए, इक्वेटर पे अरेंज हो गए विथ क्रम 1 क्रोमेटिड। एक क्रोमेटिड अपोजिट पोल में जाएगी, वो एनाफेज में जाएगी। Of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fibers from the one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole. क्लियर? अपोजिट पोल मतलब एक जो सेंट्रियोल का काइनेटो उधर से जो स्पिंडल फाइबर आ रहा है वो एक सिस्टर क्रोमेटिड को पकड़ेगा, दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड है उसको दूसरे पोल वाला माइक्रोट्यूब्यूल या सेंट्रियोल जो है वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों के ही बात। इस चीज को मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको। ये देखो, ये दोनों ही है, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड।
भी सिस्टर क्रोमेटिड है। ऐसा नहीं है कि दोनों माइटोटिक जो स्पिंडल फाइबर्स है दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक ही डायरेक्शन में ले जाएगा कि इसको चलो मैं ले जाता हूँ, इसको तुम ले जाओ, नहीं ऐसा नहीं होगा। हर एक का एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, और अटैच कहाँ होंगे, सेंट्रोमेर के पास में एक प्रोटीन होता है काइनेटोकोर प्रोटीन, और उस प्रोटीन की हेल्प से ये माइटोटिक स्पिंडल फाइबर उससे अटैच होते हैं और उस सिस्टर क्रोमेटिड्स को डिसइंटीग्रेट करते हैं। एक सिस्टर क्रोमेटिड को ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल में ले जाता है कौन, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर। दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड जो यहाँ थी उसको साउथ पोल में ले जाता है, वो भी कौन, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर, क्योंकि वहाँ दोनों ही अलग सेंट्रोमेर से जुड़े हैं। ठीक है, दोनों के सेंट्रियोल जो है अलग अलग है। अब इसके अलावा कैरेक्टर बाय the chromosomes are moved to opposite poles central, hence the metaphase is characterized by the chromosome coming to lie at the equator with one chromatid। अब इक्वेटर पे आ गई, एक क्रोमेटिड अलग अलग जा रहा है, मैंने आपको बता ही दिया। और which chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber to from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole। ये चीज मैंने अभी आपको डायग्राम से समझाई। The plane of alignment of the chromosomes at the metaphase is referred to as the metaphase plate। जहाँ पर बीच में क्रोमोसोम एक सेंटर में इमेजिनरी प्लेट पे अरेंज्ड है, उस प्लेट को कहा जाता है मेटाफेजिक प्लेट। जो इमेजिनरी प्लेन है, एक काल्पनिक है, जो ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से क्रोमोसोम व्यवस्थित रहता है, अरेंज हो गए अपना आप ही मैनर्स में, इसलिए उसको कह दिया मेटाफेजिक प्लेट। द की फीचर ऑफ द मेटाफेज आर स्पिंडल फाइबर। उसको मेन चीज क्या है आपको सॉरी, द स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होता है, काइनेटोकोर से। और काइनेटोकोर कहाँ होता है, सेंट्रोमेर्स के पास में, सेंट्रोमेर के पास वाले रीजन में काइनेटोकोर प्रोटीन पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ साइड पोल्स। अब देखा मैंने आपको बताया, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड जो होगी। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड एक नॉर्थ में जा रही है, दूसरी साउथ में जाएगी, तो पोल्स में मूव करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आज के इस वीडियो में हमका यही विराम देना चाहिए। इसके बाद अभी तो हालांकि बहुत कुछ बचा है हमें, अभी तो मेटाफेज के बाद एनाफेज पढ़ेंगे, फिर टेलोफेज पढ़ेंगे, फिर साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे, उसके अलावा फिर शुरू होगा हमारा मियोसिस। मियोसिस में बात करेंगे मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। ठीक है, जैसे जैसे समय मिलता है हम इस क्लास को जल्दी से आगे ले जाएंगे और आपका जल्दी से क्यूरिकुलम जो चैप्टर भी खत्म करेंगे और सिलेबस भी जल्दी कवर करेंगे। पर हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ ये तो आपके इंपॉर्टेंट है। आप भूल जाना कि इस चीज़ में जो आपके सिलेबस आया है, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ सेल साइकिल नीट 2020 के क्वेश्चन उठा के देख लेना, ये चैप्टर पूरा हो जाए, कितने क्वेश्चन आप अटेंड इजीली कर पाओगे, ये मेरी गारंटी। जो भी क्वेश्चन आप ये भी नहीं छोड़ पाओगे जो सेल डिवीजन से, और नहीं कर पाओ तो मुझे लाना क्वेश्चन, मैं आपको ऑनलाइन सॉल्व कर पाऊंगा मेरे लाइव सेशन में। ठीक है, आप क्लासेस अटेंड करके देख सकते हो, नहीं होता आप मुझे कमेंट कर देना। तो इस वीडियो का आज यही विराम देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम वापस से जल्दी शुरू करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद ये इस वीडियो के ऊपर बने रहने के लिए, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो आपके मन में अगर वीडियो से रिलेटेड है या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, मन में क्वेरी है, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और मुझसे पूछें। तो इसी के साथ मैं महेंद्र सिंह चौहान आपसे आगे चाहूँगा। जय हिंद।